और आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। और वास्तव में इस समयों पर आप सबकी प्रार्थना की हमें जरूरत है। We have been studying the book letter to second letter to Corinthians. और इस समय हम लोग दूसरा कुरिन्थियों की किताब का अध्ययन कर रहे थे। So 1 minute, second Corinthians. We have studied second Corinthians chapter 6 in the previous study. और पिछले क्लास के अध्ययन में हमने दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 6वें अध्याय को अध्ययन कर रहे थे। Separation is very important in the life of the church. और कलीसिया के जीवन में अलगाव एक बहुत ही आवश्यक अनिवार्य सेवा है। Separation is not the new thought in the New Testament. और जो अलगाव है वो एक नए नए नियम में कोई नया विचार नहीं है। It began in Genesis chapter 1. और ये उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय से ही चालू हो चुका है। I have already told you earlier, even I've been telling many times that whenever we want to learn or study anything, we need to go to the place where it is first mentioned in the scripture. और मैं बात ये पहले भी बताया हूँ आपको कि जब भी हम कोई विषय सीखते हैं तो उसमें जब वो विषय बाइबल में कभी भी पहले जहाँ दिया होता है वहां से शुरुआत से हम उसका अध्ययन करना है। In the very Genesis chapter 1, we find that God separated heavens and the earth. और उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है धरती और आकाश को अलग किए। God separated water from and earth. और परमेश्वर ने जल को धरती से अलग किया। In the same way, separation is the biblical principle. इसलिए हम देखते हैं कि अलगाववाद या अलग होना बाइबल का परमेश्वर का वचन का सिद्धांत है। So in the second Corinthians chapter 6, Apostle Paul was saying that separation is something very, very important. इसलिए दूसरा कुरिन्थियों की किताब अध्याय 6 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अलग होना या अलगाववाद होना एक महत्वपूर्ण बात है। Since we have already learned in the previous class, because we need to proceed further from the previous class, I would like to just read once. I'm not going to explain it. और चूंकि हम पिछले क्लास में ये सब को अध्ययन कर चुके हैं इसलिए हम केवल एक बार पढ़ेंगे इसे और आगे जाएंगे। So, chapter 6 and verse 16 onwards. Or else it is good to read from verse 14. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk with among them. I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be your father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord God Almighty. दूसरा कुरिन्थी की किताब अध्याय 6 वचन 14 से लेकर 18। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। So why I have to go through again in the material which we have already studied in the earlier has a purpose. और ये जो वचन का भाग है इसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसे दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका एक उद्देश्य है। So in the seventh chapter, verse 1, और जब हम 7वें अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit,
perfecting holiness in the fear of God. और 7वें अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। We need to cleanse ourselves. और यह लिखा है, हमें अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है। With what we should cleanse ourselves? और हमको अपने आप को किन बातों से शुद्ध करना है? Verse 1 says, with these promises. और लिखा है, चूंकि हमें ये प्रतिज्ञाएं मिली है इसलिए हमें शुद्ध करना है। What are those promises? और ये कौन सी प्रतिज्ञाएं हमें मिली है? Separation. और ये प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग किया है। So we have already seen in the previous classes, we need to be separated from the unbelievers. We need to be separated from the lawlessness. We need to be separated from the darkness. We need to be separated from the Belial. And we need to be separated from idols. और इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमें अधर्म से अलग रहना है, अंधकार से अलग रहना है, बलियाल से अलग रहना है, अविश्वासियों से अलग रहना है और मूर्तियों से अलग रहना है। So what will happen when we separate from all these list that is already portrayed here? और यहाँ पे इतनी सारी जो बातें दी गई है जिनसे हमें अलग होना है, तो इसका क्या मतलब है? I will dwell in them and walk और among them. I will be their God, and they shall be my people. और ऐसा परमेश्वर ने इसलिए कहा है क्योंकि वो हमें बसना चाहता है, वो हमें चलना फिरना चाहता है, और वो कहता है कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। And chapter 7, verse 1, when the Lord is in our midst, when the Lord walks in and through us, what is the result? We cleanse ourselves from all filthiness of flesh and spirit, perfecting the holiness in the fear of God. और चूंकि परमेश्वर हमारे अंदर चलना फिरना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, इसीलिए लिखा है कि आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए अपने आप को पवित्रता को सिद्ध करें। We understand one simple purpose or fundamental purpose in this particular verse. और इस एक वचन में हम आधारभूत जो है सिद्धांत को परमेश्वर के देखते हैं। Why God has given us promises in the Word of God? और परमेश्वर अपने वचन में हमें प्रतिज्ञाएं क्यों देते हैं? To cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. और इसीलिए हमें प्रतिज्ञाएं देते हैं ताकि हम अपने आप को शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध रखें। So we should never forget the purposes of picking the promises from the scripture. And when God fulfills the promises, the result ought to be cleansing of any filthiness that pertains to the flesh and the spirit and perfecting the holiness in the fear of God. तो परमेश्वर की जो आज्ञा यहाँ पे दे रखी है, इन वचनों को हम जो अलग होने की आज्ञा है उसे मानना है, ताकि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें हमारे लिए किया इसके द्वारा उसे हम प्राप्त कर सकें और अपने आप को शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध करके परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Here we see one quotation on the screen, Matthew's Gospel chapter 4 and verse 4, when the Lord Jesus Christ was on the earth as human, and he himself claimed the word to overcome the temptation. और मत्ती 4 अध्याय के 4 वचन में आप देखेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह को जब परीक्षाओं का सामना करना पड़ा तो उन्होंने भी उस परीक्षा से जय पाने के लिए परमेश्वर के वचन का उपयोग किया। There are many blessings of the word of God when we apply in our personal and practical lives. और परमेश्वर के वचन में बहुत सारी आशीषें हैं अगर हम उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करें तो। In the very first occasion, I have shared the doctrine of the Bible, the bibliology. और इसलिए सबसे पहले मैंने आपको परमेश्वर के जो पवित्र शास्त्र है अर्थात वचन है, जो बिब्लिकल जो हम कहते हैं जिसे बिब्लियोलॉजी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। I think it was somewhere before 3.5 years back. और लगभग 3.5 वर्ष पहले हमने बिब्लियोलॉजी के सिद्धांत का अध्ययन किया था। So let's move forward. Chapter 7 and verse 5. Apostle Paul says, when we came to Macedonia, our flesh had no rest,
But when we were afflicted on every side, conflicts on the outside, fears inside. और दूसरा कुरिन्थी की किताब 7 अध्याय के 5 में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयाँ थी और भीतर भयंकर बातें थी। And he says, when he met Titus, God comforted him. We find it in verse 6. Nevertheless, God who comforts the downcast comforted us by the coming of Titus, and not only by his coming, but also by the consolation with which he was comforted in you when he told us of your earnest desire, your mourning, your zeal for me, so that I rejoiced even more. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तीतुस के आने से उन्हें शांति मिली थी, इसलिए 6 और 7 वचन में ऐसा लिखा है, तो भी दिनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और ना केवल उसके आने से, परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और तुम्हारे लिए तुम्हारी और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार में सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। I would like to tell you something very, very important whenever you read the word. You need to remember two things. प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर के वचन को आप अध्ययन करते हैं तो दो बातों का विशेष ध्यान रखें। Two things you should never, never forget if you have to understand the scripture, the pure message from the Holy Spirit. और आप अगर परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हैं और जो पवित्र आत्मा उसमें से संदेश देना चाहते हैं, उसको अगर स्पष्ट रीति से समझना चाहते हैं, तो ये दो बातें आप ना भूलें। Number one, context. और पहला, उस वचन के संदर्भ को ना भूलें। What is the context behind the text which is written here? और जो वहाँ पे वचन लिखा है उसके पीछे कौन सा संदर्भ है, उसे हम ना भूलें। If you miss the context, you will never, never understand the truth. और प्रियो, अगर हम उस संदर्भ को न नहीं समझेंगे तो उस परमेश्वर के वचन के पीछे वे सत्य को हम देख नहीं पाएंगे। Let me tell you one shocking news. और मैं आपको एक आश्चर्य और अचंभा होने वाला समाचार बताता हूँ। Why the word of God is being ministered more and more in our local churches, but still people are not transformed. There is no change in the people. We don't find the fear of God in the people. We don't find, Christ-likeness. We don't find any, the Spirit of God working in and through them. Why? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों आज स्थानीय कलीसियाओं में प्रचार तो बहुत हो रहा है, लोग सुसमाचार तो बहुत सुन रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं है, लोगों के अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है, लोगों के जीवन में मसीह की समानता नहीं है, और लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। It is because the word of God is not being ministered as it is. और उसका कारण ये है कि परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा उसको प्रचार नहीं किया जा रहा है। Whatever the Holy Spirit wrote this text, he wrote with a purpose. When we don't catch that purpose, and when we add our own thoughts, our own ideologies, our own, words, and then supply to the people, and they will never grow, and there will never be any edification, there will never be any glorification, and people perish. और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने जिस उद्देश्य से वचन दिया है, कई बार हम उस उद्देश्य को ध्यान नहीं देते और हम अपने विषय को और अपने शब्दों को और अपनी विचार को उस प्रचार में ले आते हैं, और इसके कारण हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में काम नहीं होता है, और उसके कारण लोगों को उन्नति नहीं होती है, और उनके जीवन में हम देखते हैं कि कोई भी जो बदलाव होता है और जो उन्नति नजर नहीं आती है। So that's it. Whenever we go to hospital and we see the doctor, doctor says, he talks about the diet, what we should take, and there he prescribes what our body needs, and we need to avoid adulterated food. We need to avoid, the artificially processed food. और हम देखे होंगे कि जब अस्पताल में हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें बताते हैं कि किस प्रकार का डाइट और भोजन हमें लेना है, और हमें बताते हैं कि हमारे शरीर की ज़रूरत के अनुसार हमें अच्छा भोजन लेना है, और वो हमें बताते हैं कि जो अशुद्ध भोजन रहते हैं और जो बाहर से बनाए हुए जो आर्टिफिशियल जो प्रोसेस्ड फूड रहते हैं, ऐसा भोजन हमें नहीं लेना है।
In the same way, when we read the word, when we study the word, when we don't catch what the Holy Spirit is writing, when we don't take the word as it is, you know, definitely the time spending with the word has no use and it won't work and we perish. और हम देखते हैं उसी प्रकार की परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जैसे उद्देश्य से और जिन विषयों को लेकर जैसे पवित्र आत्मा ने उसे लिखा है, अगर हम उसे उस वचन को उस समान नहीं पढ़ पाते हैं, तो वहाँ वो वचन हमें पढ़ने के बाद भी कोई उपयोग नहीं रह जाता और वो हमारे लिए कार्य नहीं करता। So the number one point is context is very important. तो हमने देखा कि परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए पहले उसके संदर्भ को हम ध्यान देना है। And second point is the grammar. और दूसरा होता है कि हमें उस वचन के व्याकरण को ध्यान देना है। So any language for that matter, every language has a grammar. और हम जानते हैं कि कोई भी भाषा क्यों ना हो, हर भाषा का एक व्याकरण होता है। And every language has vocabulary. और हम जानते हैं कि हर भाषा का एक शब्दकोश होता है। Every language has dictionary so that we will find the proper meaning for the word. और हर भाषा का एक अपना शब्दकोश होता है जिसमें उस शब्द का मतलब बताया गया होता है। If you don't understand the language, if you don't understand, if you don't care to check with the dictionary, you miss the very communication. और अगर आप उस भाषा को ध्यान न दें और उसके शब्दकोश को ना पढ़ें तो आप जो है वो किसी व्यक्ति के साथ आप बात नहीं कर पाएंगे, आपस में वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। So, God willing, I would like to give you brief thoughts concerning this particular topic, which is called hermeneutics. In Greek, hermeneutics. और परमेश्वर ने चाहा तो जो हर्मेनेटिक जो शब्द है जिसे हम व्याख्या शास्त्र बोलते हैं, जरूर उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। Maybe after completion of Revelation, I would like to give brief introduction about the hermeneutics. That means the principles of interpretation of the scriptures. और परमेश्वर ने चाहा तो प्रकाशित वाक्य अध्ययन करने के बाद हम हर्मेनेटिक्स का अध्ययन करेंगे, जिसका मतलब होता है वचन की व्याख्या करने का शास्त्र। You may wonder why I am talking all these things in this particular context. और आपको आश्चर्य होगा कि मैं इस संदर्भ में इसी संदर्भ में बात क्यों कर रहा हूँ। Why Apostle Paul is saying that when he was, restless in his flesh, when he was going, conflicts from outside, fears inside, and people were troubling him. At that point of time, how he was consoled or comforted by Titus. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस अपनी परेशानियों को बता रहे हैं ऐसे समय पे जब उनके शरीर को भी चैन नहीं मिल रहा है और अंदर और बाहर चारों तरफ से क्लेश वो पा रहे थे और बहुत भयंकर उनके साथ व्यवहार था। ऐसे समय में कैसे तीतुस के आने से उनके जीवनों को शांति मिली थी, उस विषय में वो यहाँ पर गवाही दे रहे हैं। So we need to understand the context. इसलिए हम इस विषय के यहाँ के संदर्भ को समझना है। I have already told you at the time of introducing the letter to Corinthians. और जब मैंने आपने कुरिन्थियों की पत्रियों के लिखने के परिचय के बारे में बताया था, तब मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। I know that it is difficult to remember, but let me remind you. और मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए याद रखना कठिन है, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। So Apostle Paul wrote 4 letters to Corinthians. और हमने देखा था कि प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को 4 पत्रियां लिखी थी। Out of 4, only 2 letters are found in the scriptures. और हम जानते हैं कि 4 में से केवल 2 ही पत्रियां हैं जो पवित्र शास्त्र में शामिल है। The other 2 letters are called hard letters by scholars. और जो 2 पत्रियां और हैं जिनको शामिल नहीं किया गया है, उनको समझने के लिए कठिन पत्रियां कहा जाता है, Because he used very rough language. क्योंकि उसमें बहुत ही कठोर शब्दों का उपयोग किया गया है। He wrote out of much anger. और चूंकि उन्हें वो जो बाकी 2 पत्रियां हैं वो बहुत क्रोध के साथ लिखी गई हैं। It's because although the church at Corinth was initiated and founded by Apostle Paul, he was like a fatherly figure, yet they have rejected him because of the false teachers prevailing there in his absence.
और हमने देखा इसका कारण ये है कि प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया की नींव रखी थी, उसे शुरू किया था, और उस कलीसिया के लिए वो पिता के समान था। फिर भी झूठे शिक्षकों ने वहां पे कार्य करके प्रेरित पौलुस की जो आदर है उसको वहां कलीसिया में कम कर दिया था। So they have rejected him. When he goes in person, they have rejected him. He was so hurt. और जब वो एक व्यक्तिगत रूप से वो कलीसिया में गए तो लोगों ने उन्हें त्याग दिया और उनको बहुत चोट पहुंचाई। Then he wrote one letter sent by Timothy. और इसलिए उन्होंने एक खत लिखा और तिमुथियुस को पत्री लिखी। So they have rejected Timothy also. और जब तिमुथियुस को भेजा गया तो तिमुथियुस को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। Timothy could not handle the problems there. और वहाँ की जो समस्याएं थी उसको तिमुथियुस संभाल नहीं पाया। Then he sent Titus. तब प्रेरित पौलुस ने तीतुस को भेजा। Titus is little tough man. और तीतुस जो था वो थोड़ा सा जो है मजबूत और कठोर व्यक्ति थे। But whereas Timothy was little timid. और जबकि तिमुथियुस जो थे वो थोड़े से कमजोर पड़ गए थे। So Titus went there and he sorted out the issues and he came back with the good news. और तीतुस इसलिए वहां पर उन्होंने समाधान किया कुछ परिस्थितियों का और अच्छे समाचार के साथ प्रेरित पौलुस के पास वापस आए। That is why he says, please read with me verse 6. Nevertheless, God who comforts the downcast comforted us by the coming of Titus, and not only by his coming, but also by the consolation with which he was comforted in you, when he told us of your earnest desire, your mourning, your zeal for me, so that I rejoiced even more. और 6 और 7 वचन में ऐसा लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय के, तो भी दिनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। Even in these days, I also found a couple of occasions like this. और इन दिनों में कुछ कुछ परिस्थितियों में कुछ बातें और मैं याद करता हूँ। We minister among them for several months, but in some critical issues, when they behave carnally and when we find a lot of gadbad and misunderstanding and lot of unforgiving spirit, a lot of fights, then definitely we are down and we feel sad and we cry to the Lord and for rectification and really we do something to see that the church will be revived again. और हम बहुत सेवा करते हैं कलीसियाओं में, और फिर भी हमारी इतनी परिश्रम और सेवा करने के बाद कई बार हम वहाँ शारीरिक लोगों को देखते हैं जिनके अंदर क्षमाहीनता की भावना होती है, झगड़ा होते रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम कई बार चिल्लाते हैं, परमेश्वर के सामने रोते हैं और सुधार के लिए प्रार्थना करते हैं, और चाहते हैं कि चर्च फिर से सुधर जाए और वो ठीक से काम करे। So when we hear that such church which was disturbed a lot is again revived, that gives us lot of joy to us. और जब ऐसी जो कलीसियाएं जो बिगड़ी हुई दशा से फिर से सुधर जाती हैं तो वास्तव में ये समाचार हमारे लिए बड़े ही आनंद को लेकर आता है। So because those who love the Lord and love the church and love the ministry, those who involve in the ministry, it gives a lot of joy that when people are repented and people accept their mistakes and they get back to the track and they again begin to enjoy fellowship with the local church and enjoy growing, that gives us a lot of joy. और वास्तव में हम जो प्रभु को प्रेम करने वाले लोग हैं, हम कलीसिया को प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, और हमारे जो लोग हैं जब मन फिराते हैं तो एक बड़ा आनंद होता है हमें, जब वो अपनी गलती मानते हैं, सही मार्ग में चलते हैं। इससे कलीसिया को देखकर हमें एक बड़ा आनंद मिलता है। And then verse 10, he says that for godly sorrow produces repentance leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. For observe और this very दूसरा कुरिन्थी thing 7 अध्याय के that 10 में भी है। that you sorrowed in a godly manner.
और यहाँ पे देखते हैं दूसरा कुरिन्ती 7 अध्याय के 10 में, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। So there are two kinds of sorrows. तो हम यहाँ देखते हैं प्रेरित पौलुस 2 प्रकार के दुख या शोक के बारे में बताते One हैं। is sorrow according to the world, पहला जो दुख है वो संसार के अनुसार का दुख है, and secondly, sorrow according to the will of God. और दूसरा वो शोक है जो हम परमेश्वर की इच्छा से करते हैं। That means when the Holy Spirit convicts us of our sins through the scripture by the Holy Spirit, that will produce us repentance without regret. और हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शोक करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा जो है हमारे पाप के विषय में हमें बताते हैं, और परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हमें कायल करते हैं, और उस समय हम पश्चाताप करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं। It is called godly sorrow. और इस प्रकार के शोक को परमेश्वर का शोक कहते हैं। So I have told you already the word faith in Greek, it is called pistis, Pistis, pistis. और संसार के अनुसार जो विश्वास होता है उसे पिस्टिस कहते हैं। So faith means turning to God, turning away from sin. और हम जानते हैं कि जो विश्वास का मतलब होता है परमेश्वर की ओर मुड़ना, पाप की ओर से मुड़ के परमेश्वर की ओर आना। So turning away from the world or away from the sin, away from our old nature, that means repentance. Repentance means turn around. और संसार की ओर से, पाप की ओर से और पुराने स्वभाव की ओर से मुड़कर परमेश्वर की ओर आने को ही मन फिराना कहते हैं। तो मन फिराना का मतलब होता है मुड़कर आना। So when Titus came from Corinth, and Titus was explaining to Apostle Paul, saying that they were repenting and they were, they were weeping for sorrow because of the mistakes, because of the sins they have done. And because of that, Paul says that that is godly sorrow, that will bring repentance, that will bring edification to them, that will bring glory to God. और तीतुस वहां पे आते हैं और प्रेरित पौलुस को बताते हैं कि कलीसिया ने वास्तव में अपनी गलतियों को माना है, पश्चाताप किया है, वे लोग रो रहे हैं और परमेश्वर के सामने प्रायश्चित कर रहे हैं। तो प्रेरित पौलुस ने इसके उत्तर में कहा कि वास्तव में ये परमेश्वर भक्ति का शोक है और ये सही पश्चाताप है। इसके द्वारा कलीसिया की उन्नति होगी और उनकी महिमा बढ़ेगी। So let us recap what we have studied so far. These 7 chapters. Chapter 1, the testimony of the ministers, sufferings and comfort. Chapter 2, the fellowship in the ministry, forgiveness and witness. Chapter 3, the fruits of the ministry, transformation. Chapter 4, the experiences of ministers, death and resurrection. Chapter 5, the preparation of the ministers, God's judgment and rewards. Chapter 6, the minister's witness, opposition and separation. The same thing is continued in chapter 7. तो अभी तक हम जो 7 अध्यायों का अध्ययन किए हैं उसकी रूपरेखा और जो संक्षिप्त में उसके विषय को देखें, तो पहले अध्याय में हमने सेवकों की गवाही देखी जिसमें उनके दुख के बारे में और सांत्वना के बारे में हमने देखा। दूसरे अध्याय में हमने सेवकों की संगति के बारे में देखा जिसमें क्षमा के बारे में और गवाह के बारे में हमने देखा। तीसरे में हमने सेवकाई के फल के बारे में देखा जिसमें लोगों के परिवर्तन के बारे में हमने बातें देखी। चौथे अध्याय में हमने सेवकों की अनुभव के बारे में देखा जिसमें मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में हमने अध्ययन किया। 5वें अध्याय में हमने सेवकों की तैयारी के बारे में देखा जिसमें परमेश्वर का न्याय और मिलने वाले प्रतिफल के बारे में हमने देखा। 6वें अध्याय में हमने जो परमेश्वर के सेवक होते हैं उनकी गवाही को देखा जिसमें हमने अलगाव के बारे में और जो विरोधी तत्व होते हैं उनके बारे में देखा। और 7वें अध्याय में भी हमने सेवकों की गवाही देख रहे हैं जिसमें अलगाववाद और विरोध के बारे में देख रहे हैं। So we have already seen that the second Corinthians was divided as 3 sections. The first section is chapter 1 to verse 7. With this, we have completed the first section. तो हमने देखा था कि दूसरा कुरिन्थियों का अध्ययन करने के हमने 3 भाग में बांटा था।
और उसमें So, से पहला भाग जो था, जो पहले अध्याय से 7 अध्याय तक, उसकी जिसमें सेवकों की जो आदर्श है उसको हमने देखा था, उसकी गवाही के बारे में देखा था, वो विषय यहाँ तक पूरा होता है। chapter 8 and chapter 9, Paul is talking about monetary sharing, something about finances and the fellowship. और 8 और 9 अध्याय में प्रेरित पौलुस जो हैं उदारता पूर्वक देने वाले दान के बारे में और संगति के बारे में कुछ बातें बताते हैं। Chapter 10 to 13, Paul focuses more about the sufferings he went through and the ministry of grace he experienced, how he went through the challenges and how the Lord met those challenges. He came out with total success for the glory of God. और तीसरे भाग में 10वें अध्याय से 13वें अध्याय के बीच में प्रेरित पौलुस अपनी सेवकाई के अनुभव के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार का सताव और चैलेंज और चुनौती उनके जीवन में आया और किस प्रकार उससे पार होकर उन्होंने परमेश्वर की महिमा किया। So I will just give you a very brief summary so that you may be able to understand the Second Corinthians properly. So whenever you go through the Second Corinthians, you will be able to realize what we have studied now. इसलिए हम संक्षिप्त रूप में बाइबल के सर्वे का अध्ययन कर रहे हैं, तो जब भी आप कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ेंगे तो इसके विषय को आप याद रख पाएंगे। To the best of my understanding, whatever I felt that we should study more, that I was taking at length in studying, and what I felt that you can understand by yourself. If I give you the basic understanding, that's what I'm trying to do all these weeks. और मेरी जहाँ तक समझ है, मैंने जो अध्ययन किया है उस अध्ययन के द्वारा और जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसके द्वारा, हाँ, हम जान सकते हैं कि जो आधारभूत सच्चाई है, जो समझ है, वो आपको हम दे रहे हैं ताकि आप इन वचनों को समझ सकें। No, no, what I'm trying to say is, so whatever I felt that it is more important, so I was taking more time in studying those passages, and what I felt that you can manage doing it if I give you certain basic, you'll be able to carry on further. और जो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे समझाने में मैं समय दे रहा हूँ, और बाकी चीज़ों को आप अध्ययन करके अपनी जो भी आधारभूत समझ है उसके अनुसार आप उसे पूरा करें। So chapter 8 and chapter 9, he talks about the ministry of fellowship through finances. और 8 और 9 अध्याय में प्रेरित पौलुस जो हैं संगति के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम दान देते हैं। So we need to take the Old Testament foundation. There, in the Deuteronomy chapter 14, verses 22 to 27, there we understand that God commanded Israelites that they should give 10% of their first fruits, agricultural income, to the Levites because they live based upon the supply given by the Israelites as per the God's command. और ये जो दशवांश देने की आज्ञा है, ये पुराने नियम की जो आज्ञा है, परमेश्वर ने दिया था लेवियों के लिए, कि जो भी अपने कृषि भूमि से मिली हुई उपज का दशवांश लोग लेवियों को देते थे, जो कि व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 14 उसके 22 से 27 के बीच में हम देखते हैं। So remember, it is the first fruits. Again, 10% of the total income. Leviticus chapter 27, Numbers 18, and Matthews 23 and 23. और उसके बाद हम जो देखते हैं, पहले हमने पहली उपज के दशवांश को देखा, लेवियों को जो दिया था। उसके बाद जो हमारी कुल जो आमदनी होती है, उपज होती है, उसके दशवांश को भी हमने देखा, जो लेवियों को दिया जाता था, जिसके बारे में लेवी व्यवस्था 27 अध्याय 30 से 32, गिनती की किताब 18 का 21 और मत्ती 23 के 23 में लिखा हुआ है। Not only on annually, but also on third year and sixth year. Deuteronomy chapter 14, verses 28 and 29. Again, there in that agricultural income, 10% of the income must be given as a gift, as a portion to the Levites for their survival. और इसके साथ ही तीसरा जो जो भाग है, जो कृषि की उपज का दशवांश जो दिया करते थे लेवियों को तीसरे और छठवें वर्ष में, वो भी परमेश्वर की आज्ञा थी कि ये भाग लेवियों को दिया जाए, जो कि व्यवस्था विवरण 14 अध्याय के 28 और 29 में लिखा है। Prophet Malachi, he talks much about in chapter 3 what happens when we don't give, what happens when we give.
He gives a beautiful message at length. और मलाकी की किताब अध्याय 3 में मलाकी भविष्यवक्ता ने स्पष्ट रीति से बताया है कि जब हम दशमांश नहीं देते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, और जब हम देते हैं तो हमारे साथ कौन सा कार्य होता है। So, uh, but in the New Testament, the pattern is little different. परंतु नए नियम में जब हम आते हैं तो देने की जो कार्य है जो थोड़ा अलग किस्म की, अलग प्रकार की है। It is not tayat. और नए नियम में हम एक दशवांश के रूप में देने को नहीं The देखते। understanding is totally different. और यहाँ पे जो समझ है वो बिल्कुल अलग है। There are two different schools of thought. One school of thought says this: you first give the tithe, and then according to this New Testament. And other school of thought says in the New Testament a freedom is given, and actually according to the freedom in the New Testament, it is definitely much more than tithe of the income. और एक विचार के लोग कहते हैं कि पहले हमें दशवांश देना है और उसके बाद जो नया नियम में जैसा लिखा हुआ वैसे भी देना है। और दूसरे विचार के लोग कहते हैं कि नए नियम के लोग स्वतंत्र हैं, वो जैसा अपना देना चाहे दे सकते हैं, और दशवांश देना है या उससे ज्यादा भी देना है उसके लिए वो स्वतंत्र है। So 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2 says that give according to the prosperity. और पहला कुरिन्थी की किताब 16 अध्याय उसके 1 और 2 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि अपनी आमदनी के अनुसार आप देना देना सीखें। Some people take loans and then give to God. I don't think God will appreciate that. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेते हैं या कर्जा लेते हैं उसके बाद परमेश्वर को देते हैं, तो मैं नहीं सोचता कि ऐसे लोगों की परमेश्वर प्रशंसा करेंगे। Because in some churches, what they say, when you give to God, you are giving a loan to God, and God will add interest and then give it to you. Or some people even walk, few miles extra, say that if you give 10%, God will give you 100%. Somehow people talk many ways. But what Bible says is give according to your prosperity. और कुछ कलीसियाओं में सिखाया जाता है कि आप लोन लेंगे, कर्जा लेंगे, उसके बाद जब आप परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर उसको आपको ब्याज के साथ वापस लौटाएगा। ऐसा कुछ बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब आप परमेश्वर को दशवांश देते हैं वो आपको 100% वापस करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन नए नियम में हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि अपने आमदनी के अनुसार हमें देना है। Because Bible says that to earn, it is God who gives strength, it is God who gives opportunities. और बाइबल हमें बताती है कि जो कुछ हम कमाते हैं वो वास्तव में उसके लिए परमेश्वर हमें अवसर देते हैं और उसी की दी हुई सामर्थ्य से हम कमा पाते हैं। Actually, it itself is a big message to preach, but I'm not going to go in detail. And Deuteronomy chapter 8 says very clearly that it is God who gives us capacity to earn our livelihood. So always we should remember that we should be grateful to God because we are able to earn not only health but every opportunity, ability, skills, favor with the people, whatnot and whatnot. और जैसा कि ये बहुत बड़ा संदेश है कमाई और दशवांश के बारे में, लेकिन हम इसको थोड़े से शब्द में आपको वो बता रहे हैं। परमेश्वर ही है जो हमें कमाने की ताकत देता है। इसके बारे में व्यवस्था की किताब 8 में लिखा है कि जो कुछ हम अपनी जीविका के लिए कमा पाते हैं उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, हमारी क्षमता हो, हमारे जीवन की कुछ भी बातें हों या लोगों का हमारे प्रति फेवर हो, ये सब कुछ जो है ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ होता है, इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। So, for example, if my earning is 10,000, so 10% is only 1,000. आप जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, अगर मेरी कमाई 10,000 की है तो मेरा दशवांश केवल 1,000 होता है। So, I give 1,000 as an offertory to the Lord, and 9,000 I'll keep it for my expenses. तो अगर ऐसा है तो मैं 1,000 परमेश्वर की सेवा के लिए देकर बाकी 9,000 को मैं अपने खर्च के लिए रख सकता हूँ। Suppose God makes my income increased from 10,000 to 1 lakh. और मान लीजिए परमेश्वर मेरी तनख्वाह को 10,000 से लेकर 1 लाख तक बढ़ा देते हैं। Simple human logic says that if my income is 1 lakh and tithe is 10,000,
I'll give 10,000 और as एक an साधारण मान offertory, and 90,000 I'll keep it with myself. और एक साधारण मानवीय बुद्धि से अगर हम सोचेंगे, तो अगर हमारी तनख्वाह 1 लाख है तो उसका दशवांश 10,000 होगा, और हम 10,000 परमेश्वर को देने के बाद बाकी 90,000 अपने खर्च के लिए रख लेंगे। Then I don't think we'll be doing justice according to 1 Corinthians 16 1 to 2, give according to the prosperity. तो अगर ऐसा है तो पहला कुरिन्ती 16 अध्याय के 1 और 2 वचन के अनुसार हम न्याय न्याय नहीं कर रहे हैं। So that means when you are getting 10,000, you are able to give 1,000, keep 9,000. अगर आप 10,000 कमा रहे हैं और 1,000 देने की क्षमता रख रहे हैं और 9,000 अपने पास रख रहे हैं, When God gives you 90,000 extra, और जब परमेश्वर आपको 90,000 अतिरिक्त दे रहे हैं, then how can you give only 9,000 and keep the rest of the amount with you? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल आप 9,000 परमेश्वर को दे के बाकी सब कुछ अपने पास रख लें? Then I'm not forcing you to think, or I'm not forcing you to give. I want you to understand the scriptures. What scripture says? Scripture says, give according to the prosperity. That's the reason why I said, it is definitely more than tithe. और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि दीजिए, या मैं दबाव नहीं दे रहा हूँ, परंतु चूंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि हर मनुष्य अपनी आमदनी के अनुसार देना है। So I request every one of us, anything you do, do according to the scriptures. Scriptures is final, that is a standard. और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियो कि जो कुछ हम करते हैं उसका वास्तव में आधार वचन होना चाहिए, वचन के आधार पे हम कार्य करना चाहिए। Because we are very smart people. क्योंकि हम बहुत ही चतुर व्यक्ति होते हैं। So when my income is 10,000, I will see that my house rent should be, in a way, that should run all through, because I have to manage my house and manage everything all within that. So I'll humbly, choose few pick and choose choices. और चूंकि हम देखेंगे कि हमारे घर की किराया हमें देना है, की चीज़ें हमें करनी है, तो हम देखेंगे कि हाँ ठीक है, ये 9,000 जो मेरे लिए बच रहा है उसमें ये सब चीज़ें हम चुन के कर रहे हैं। So when my salary increased to 1 lakh, what immediately I do? I immediately go for loans. I take car loan, I take scooter loan, I go for big houses, I go for lots of furniture, and I do this and that. Normally our mind goes like that. और जैसे ही हमारी तनख्वाह 10,000 से 1 लाख पहुंच जाती है, तो हमारा गाड़ी ले लें, विचार मनुष्य के मन में दौड़ते हैं। When you are thinking to increase your own quality of lifestyle, why are you not thinking to give to the Lord more what you have been giving in the earlier stage? और अगर आप अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर को देने के विषय में भी आप ज्यादा क्यों नहीं सोच रहे हैं? No, I just want you to think, what I'm thinking, I'm simply passing it on to you. I'm not forcing again. I want you to think what the scripture says. और मैं आपको केवल विचार बता रहा हूँ, मैं आपके सामने कोई दबाव की परिस्थिति नहीं रख रहा हूँ। जैसा कि वचन हमें बता रहा है, उन बातों को हम चर्चा कर रहे हैं। And Bible also says that 2 Corinthians chapter 8 verses 3 4, give voluntarily. और दूसरा कुरिन्ती 8 अध्याय के 3 और 4 वचन के अनुसार आप जाएंगे, तो वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि आप जो है वो अपनी इच्छा सामर्थ्य के से. अनुसार अपनी इच्छा से दें। And then same verse 3 to 4 says, give beyond the ability. और उसी वचन में दूसरा कुरिन्ती 8 और 3 के 8 अध्याय के 3 4 में ये भी लिखा है कि आप अपनी क्षमता से बाहर भी दें, यानी क्षमता से ज्यादा भी दें। And chapter 8 verse 11 says, give with preparedness. You need to plan, you need to organize, you need to systematize. You can't just do things haphazardly. और दूसरा कुरिन्ती 8 के 11 में आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है तैयारी के अनुसार देना है, व्यवस्थित करके कोई चीज को देना है, अचानक से कुछ भी विषय में आकर ऐसे नहीं देना है। And chapter 9 verse 2 says, give out of zeal. You should have passion. Not only passion for gospel, passion even in giving also.
और दूसरा कुरिन्ती 9 अध्याय के 2 में जब आप जाएंगे तो वहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप उत्साह के साथ देना है। And chapter 9, verse 5 says, give generously, not stingily. और नौ दूसरा कुरिन्ती 9 अध्याय के 5 में आप जाके देंगे तो वहां पे लिखा है कि आप उदारता के साथ देना है, परंतु दबाव के साथ नहीं देना है, तैयारी के साथ देना है। And chapter 9, verse 6 says that he gives an analogy saying that who sows bountifully will also reap bountifully. और दूसरा कुरिन्ती 9 अध्याय के 6 में आप जाएंगे तो वहां ऐसा लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। I have heard many testimonies. और मैंने बहुत गवाहियां सुनी हैं। I have heard many people who are very rich, what they used to do is they pump their finances towards the extension of the kingdom of God, and they live such a simple life, ordinary life, and they just give such a generously, they don't even let people know that they are the resources, such a silently, and behind the screen they pump a lot of finances to build the kingdom of God. Really, many times I'm put to shame. और प्लीज वंस एक्सप्लेन मोर। So there are many testimonies I have heard where they were very rich, but they live a simple life, and they spend a lot of money to build the kingdom of God. For example, there are many people who give 90% of their income and just manage their life with 10%. और हमने ऐसे बहुत सारी गवाहियां सुनी हैं जिसमें ऐसे बहुत सारे धनी लोग होते हैं जो परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए बहुतायत से देते हैं और खुद एक साधारण सा जीवन जीते हैं। वो देखा जाए तो 90% परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए दे देते हैं और केवल 10% में अपने जीवन को जीते हैं। If I have to tell you how spiritual you are, you give me 3 months expenditure. What is your income? What is your expenditure? Income, expenditure, you give me for 3 months, I will tell you your spirituality. और अगर मैं किसी से कहूं कि आप कितने आत्मिक हैं, उसे आप साबित करने के लिए अपने 3 महीने की जो आपकी आमदनी है, जिस पे आप आश्रित होते हैं, वो दे दें, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? If you are spiritually growing, you check the same account in the last year, you check the account this year, you yourself will be able to tell how spiritually you have grown. और अपनी आत्मिकता के बारे में आप देखें और अपने बाकी चीज़ों की उन्नति के बारे में देखें, तो आप अपने आप को परख पाएंगे कि कितना आपकी आत्मिक उन्नति इस वर्ष में हुई है। Some people think that just by giving money that is enough. No, 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 not like that. First give your heart, first give yourself, and then giving your money, that really adds value. बहुत लोग कहते हैं कि बस अपना धन दे दो और हो गया सेवा, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। हम पहले अपना हृदय देना है और तब अपना उसके बाद धन देना है, तब उसके कोई महत्व है। And then 2 Corinthians chapter 9 verse 7 says that God loves a cheerful giver. और उसके बाद दूसरा कुरिन्ती की किताब 9 अध्याय उसके 7 वचन में आप जाएंगे तो वहाँ लिखा है, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। So never give out of grumbling or by force. इसलिए वहाँ लिखा है कि कोई भी दबाव से या कुड़कुड़ा के हम नहीं देना है। Give as it is determined in your heart. और वहाँ लिखा है, जैसा आपका हृदय में इच्छा है, उसी हृदय से आप हर्ष से दान देना है। Give for the glory of God, not to build your own name and fame, not to, beat your drum. और परमेश्वर की महिमा के लिए हम दान देना है, ना कि अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी शान के लिए, अपना अपना ढिंढोरा पिटवाने के लिए हम नहीं देना है। So, suggestions. So, as to give God, we must learn to live a simple life, save money somehow, so that we may give away for the glory of God. और हमारे लिए एक अच्छी सलाह है कि हम जो है एक साधारण जीवन जीकर हम आ, इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे अंकल।
So learn simple life, instead of living exuberant life, spending money just like that. Live simple life and then save money and use that money for the glory of God. ओके, तो हम देखते हैं कि जैसा कि यहाँ पे एक सलाह दी गई है कि हम एक साधारण जीवन जीना है और अपने धन को बचत करके रखना है और उसको कहीं ना कहीं हम अपने परमेश्वर की सेवा के लिए फिर लगाना है। So pen is a pen, a 10 rupees pen, 20 rupees pen is okay. But you can't go for 10,000 rupees pen. जैसा कि हम लिखने के लिए पेन यूज करते हैं, 10 रुपए का पेन ठीक है, 20 रुपए का पेन ठीक है, लेकिन हम लिखने के लिए 10-10 हजार रुपए का पेन उपयोग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। I have heard many testimonies, rich people, they will have very simple life, they just have three pairs or four pairs or five pairs, not more than that. Some people, they'll have dozens of dresses. They don't even use once in a year or once in 6 months. That is very bad. और बहुत सारे धनी लोगों को हमने देखा है कि जिनके पास 4-5 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं होते हैं और बहुत साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं जिनके पास दर्जनों कपड़े होते हैं, इतने कपड़े कि वो साल में या 6 महीने तक उसे पहन भी नहीं पाते हैं। So to cut the long story short, give with eternity perspective. तो अगर हम इस बातों की अब समरी को देखें तो हम जो देते हैं उसको अनंत जीवन के लिए, अनंत महिमा के लिए हम उसे देने की विचार करें। Someone said, you can give without loving, but if you love, you can't but give. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप अ, You can give without loving God. आप You बिना can प्रेम give के without loving God. आप बिना प्रेम किए भी परमेश्वर को दे सकते हैं। But when you love the Lord, you cannot but give. प्लीज प्लीज अ- एक्सप्लेन अ- अगर। अगर आप प्रभु को प्रेम कर विदाउट लविंग गॉड आल्सो यू कैन गिव मनी। अगर अगर आप हाँ, प्रभु को प्रेम करता है तो बाय ऑल मीन्स यू विल गिव। अच्छा, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि आप बिना प्रेम किए भी परमेश्वर को दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको परमेश्वर से प्रेम है तो जरूर आप उसे देंगे। सो दैट विल डिसाइड हाउ मच यू लव द लॉर्ड। तो इससे पता चलता है कि आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। I think it is Billy Graham. I don't know. It is Billy Graham who said that if your purse is not converted, you are not converted. और एक बिली ग्राहम जो जैसे सेवक है, उन्होंने एक बात कहा है कि जब तक आपका पर्स का परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात जो आपका बटुआ है वो नहीं बदला है, इसका मतलब आप भी नहीं बदले हैं। That means we say thousand things about love, but never pick up something from the purse and then give it to the Lord. तो इसका मतलब यही है कि हम हजार बातें प्रेम के बारे में बोलें, लेकिन किसी सेवा के लिए हम थोड़ा सा भी अपने पर्स से ना निकालें तो ये इसी प्रकार व्यर्थ है। There are many God servants. They sleep without food. We need to think of ऐसे that. बहुत सारे परमेश्वर के सेवक हैं जिनको हमने देखा है कि वो बिना भोजन के सो जाते हैं। At least 2 times a day, servants of God who preaches gospel, they should be fed. और जरूर हम जो जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं जो दोनों समय सेवा करते हैं, जरूर हमें उन्हें भोजन देना चाहिए। Many, children of God servants, because they don't have fee to pay, their children are at home. They are not studied properly. और बहुत सारे सेवक ऐसे हैं क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए वो फीस नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनके बच्चे घर में बैठे हैं। Many God servants, they suffer with lots of diseases. They have no money to buy medicine. We need to consider them. और बहुत सारे ऐसे दास लोग हैं जो रोग में ग्रसित हैं, लेकिन उनके पास दवाइयाँ लेने के लिए पैसे नहीं। Someone said, you go or you send. और इसलिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि या तो आप जाइए या भेजिए। And then the third part is minister's experience. Here, Apostle Paul talking about a lot of his own personal struggles in the ministry, how he was fighting with the powers of darkness, how he was facing a lot of persecution.
और उसके बाद तीसरे भाग में हम देते हैं दूसरा कुरिन्थियों के तीसरे भाग में, जहाँ 10 अध्याय से 13 अध्याय के बीच में, वहाँ प्रेरित पौलुस अपने जीवन की उन विशेष गवाहियों के बारे में बता रहे हैं जहाँ उन्होंने काफी दुख उठाया था, उन्हें चुनौतीपूर्ण बातों का सामना करना पड़ा था। So, chapter 10, verses 4 to 5, he talks about spiritual warfare. और युद्ध के बारे में बातें बताई है। Let me read it from NKJV version, chapter 10, verses 4 and 5. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. और वचन में हम यहाँ देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय उसके 4, 5, 6 में ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं जबकि तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। If you read Ephesians chapter 6, verse 12, you'll be able to appreciate this verse much better. और जब आप इफिसियों की किताब 6 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे तो आप इस वचन की और प्रशंसा कर पाएंगे। I'm reading it for you, Ephesians chapter 6 and verse 12. For we do not wrestle against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. और दूसरा सॉरी, इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसके 12 में ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। So that means there is a hierarchy in the fallen angels. और हम यह देखते हैं कि ये जो गिराए हुए दूत हैं इनके साथ हमेशा एक युद्ध होता रहता है। No, no, hierarchy. Hierarchy means, superiors and again chief angels and chief of the angels and different categories. We have यस सर। general manager, assistant general manager, and supervisors and directors. So the different ranking officials. In the same way, in the fallen angels also, there are different ranks. तो हम यह देखते हैं कि जितने भी गिराए हुए दूत होते हैं और जो दुष्ट की आत्मिक सेना होती है, इनके भी अधिकारी होते हैं, इनके ऊपर भी हाकिम होते हैं और उनके ऊपर प्रधान होते हैं, ऐसे प्रकार की इनकी भी एक व्यवस्था होती है। So here Apostle Paul says that in the heavenly places there are certain hierarchy of spiritual leadership, fallen spiritual leadership. That means the powers of darkness, they meet in the heavenly places in the mid air. They have headquarters, something like that. Better say that assembly where the decisions for lawmakers. They gather at assembly hall. In the same way, in the heavenly places, the chief of all fallen angels or devils, they gather there in the heavenly places. There Apostle Paul here says in chapter 10 verse 4 and 5, our warfare is not with the local people, but we are targeting the very fortresses, the very headquarters of the fallen angels. That's what I was trying to say. और जैसा कि यहाँ पे इफिसियों 6 अध्याय 12 में लिखा है, वास्तव में जो अंधकार की सत्ता होती है, जो मध्य आकाश में अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाती है, जैसा कि यहाँ लिखा है, दुष्ट की आत्मिक सेना जो है आकाश में है। उसी प्रकार जैसे कि कोई सभा कक्ष में लोग नियम बनाते हैं, उसी प्रकार ये अंधकार की जो शक्तियां हैं, गिराए हुए दूतों की संगठन है, ये भी कुछ वहाँ पे मध्य आकाश में इकट्ठा होकर कुछ युद्ध करने की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। इसी मध्य आकाश में रहने वाले प्रधानों और जो जो अधिकारी हैं, जो दुष्ट के आत्मिक सेना के, उन्हीं से लड़ने के बारे में
प्रेरित पौलुस यहाँ दूसरे कुरिन्ती की किताब अध्याय 10 के 4 और 5 में बताते हैं। Apostle Paul very clearly says in chapter 10, verse 4, pulling down strongholds. और दूसरा कुरिन्ती 10 अध्याय के 4 में प्रेरित पौलुस स्पष्ट रीति से कहते हैं कि हमारे जो लड़ाई के हथियार हैं ये शारीरिक नहीं हैं, लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए। Paul actually is talking in two ways. प्रेरित पौलुस यहाँ दो प्रकार की बातें कर रहे हैं। He talks about the external war, he talks about the internal war. यहाँ पर प्रेरित पौलुस बाहर में होने वाले युद्ध के लिए और अंतर में यानी अंदर में होने वाले युद्ध के लिए दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। So he talks about thoughts bringing into the captivity of Christ, captivity of the word of God, filters through the word of God, and every thought is filtered through the word of God, and then he is adopting those principles or commands of the word of God. प्लीज रिपीट अंकल वंस अगेन। So he says, in Telugu it is very clearly written. In English, you please read chapter 10, read from verse 2. I beg you that when I present my I may not be bold with you confidence, by which I intend to bold against some who think of us if we walked according to the flesh. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself the knowledge of God, bringing every thought, see, bringing every thought into the captivity to the obedience of Christ. That's important. Bringing every thought into the captivity to the obedience of Christ. So that is internal war. ओके। External war is to pulling down the strongholds outside in the heavenly places, the powers of darkness. Hope you understand what I'm saying. ओके। दूसरा कुरिन्ती की किताब 10 अध्याय उसके 2 से लेकर आगे हम पढ़ते हैं तो यहाँ ऐसा लिखा है, मैं यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, क्योंकि जैसा कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम हर कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान की विरोध मूर्ति है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो यहाँ पे जो आंतरिक युद्ध लिखा है वहाँ पे हम जो कल्पना है विचारों को उसको खंडन करके हम अपने भावना को कैद करके हम अपने हृदय को मसीह का आज्ञाकारी बना देते, इसे आंतरिक युद्ध कहते हैं। और बाहर में जो हम गढ़ों को ढा देने के लिए दुष्ट की आत्मिक सेना से लड़ते हैं उसे बाहरी युद्ध कहते हैं। So this is a very important fragment of the scripture. Here we find the warfare, spiritual warfare. So our warfare is with the powers of darkness. Please remember that. और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जहाँ हम आत्मिक युद्ध के बारे में देखते हैं, और ये बात हम हमेशा याद रखना है कि हमारे आत्मिक युद्ध जो है वो अंधकार की सेना से होती है। So verse 4, the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful. What way powerful? For the destruction of और the fortresses. There's a strongholds outside with the और powers of यहाँ darkness. और इसलिए लिखा है कि जो हमारी लड़ाई के हथियार है, चौथे वचन में लिखा है शारीरिक नहीं है परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। तो परमेश्वर की जो के द्वारा जो सामर्थ्य हमें मिलती है उससे हम अंधकार की जो शक्ति है उसको अर्थात उसके गढ़ों को हम ढा देते हैं। That is through prayer. और ये है प्रार्थना के द्वारा। So individual prayer, और हम जो जो व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, fasting prayers, उपवास प्रार्थना करते हैं, and family prayers, परिवार में जो बैठ के प्रार्थना करते हैं, church prayers.
और कलीसिया में जो मिलके प्रार्थना करते हैं। Please remember, God has given authority to the church wherever two or three gather together, whatever they bind on the earth, it is bound in the heaven. और जैसा कि परमेश्वर के वचन में आपने देखा होगा, क्योंकि वहां लिखा हुआ है परमेश्वर ने कलीसिया को ये अधिकार दिया है कि जहां दो या तीन उनके नाम पर इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठे होकर जो कुछ वो धरती पर बांधते हैं वो स्वर्ग में बांधता है। So before preaching gospel, this is what we have to do. और इसलिए प्रचार करने से पहले ये वही चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। People are bound by the powers of darkness. और जो लोग हैं वो अंधकार की शक्तियों से बंधे हुए लोग हैं। People are blinded not to see the light of gospel. और लोग जो हैं सुसमाचार के प्रकाश को ना देख पाए, इसलिए लोगों को अंधा कर दिया गया है। First, lose the people who are bound by the powers of darkness through prayer. Through prayer. और इसलिए हम प्रार्थना के द्वारा जो अंधकार की शक्तियों से बंधे हुए लोग हैं उन्हें पहले छुड़ाना है। That is very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Unfortunately, what we do, you know, और जबकि दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग करते क्या हैं। with many rules and regulations, we bind the people, those who are at freedom. परंतु हम कई बार नियम कानून ऐसे बना देते हैं, उसमें जो लोग स्वतंत्र होते हैं उन्हीं को हम बांध देते हैं। So, and we tell hundred things, and people, those who are really doing very well, and we will see that they'll shut their mouth and they'll just keep quiet or get lost. और हम ऐसी 100 बातें व्यर्थ की बोल देते हैं, और जो लोग कुछ करने वाले भी होते हैं वो भी अपना मुंह बंद कर लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। If you don't do good, at least that's better, but don't do anything bad. अगर आप अच्छा ना कर सके या कोई बात नहीं है, तो कम से कम ये करें कि बुरा तो ना करें। So, verse 5, here Apostle Paul says that there are many arguments which are need to be destroyed. And he says he takes every thought into the captivity to the obedience of Christ. That's very important. That means when we hear the word of God, we need to receive the word of God, and we have to allow every thought to be filtered through the word of God and then take according to the will of God. That is how we do the will of God. तो हम देखते हैं प्रियो, यहाँ 5 वचन में लिखा है कि हमारी ऊंची बातों का खंडन करना है। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठ रही थी, हम उसे खंडित कर देना है, और अपने विचारों को और भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। ऐसा जब होगा तो परमेश्वर के वचन को जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारे विचार जो हैं वो छन कर सही विचार हम बाहर आएंगे, जिसमें वास्तव में परमेश्वर की इच्छा वचन के द्वारा पूरी होगी। Please remember, if our thoughts are clean, then our words are clean, our actions and reactions are clean. और एक बात याद रखिएगा प्रियो, कि अगर हमारे विचार शुद्ध हैं तो हमारे शब्द भी शुद्ध होंगे, और हमारी एक्शन और रिएक्शन अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया भी शुद्ध होगी। Because every speaking or words or every actions and reactions based on the thought. क्योंकि किसी भी शब्द में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो उसके विचार पर आधारित होती है। Don't believe every thought that comes in the mind. That could be deceptive. और इसलिए हर विचार जो आपके मन में आते हैं उसे पालन ना करें, क्योंकि वो हो सकता है वो आपको गिरा दे। Every thought must go through the process of filtering of the word of God. Whatever word of God permits, only those thoughts must take shape into actions and reactions, and according to those thoughts we should be able to speak, act and react. और हम अपने शब्दों को जो भी कहना है उससे पहले अपने विचारों को देखें कि जो विचार है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। हम उस विचारों को परमेश्वर के वचन के अनुसार छानना है, उसे सही करना है। और अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम विचार सही है, तब हम अपने विचार को अनुमति देना है कि वो क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में काम करे, और उसके द्वारा आगे जो है प्रतिक्रिया और कार्यों को हम देख सकें। James chapter 4 verse 7 says that obey God, rebuke the devil, devil will flee away. और जैसा कि याकूब की किताब उसके 4 अध्याय उसके 7वें वचन में जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है,
कि परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। When we don't obey God, we can't rebuke God. Even if we rebuke God, devil will not flee away. और परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन करना है, उसके अधीन रहना है, तब हम शैतान को भगा सकते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो शैतान आपके सामने से नहीं भागेगा। Many people pray a lot. Why their prayers are not being answered? This is the problem. और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आता, उसका कारण यही है। Don't ever think that your power will be powerful when you do fasting and prayer. ये कभी मत सोचिएगा कि जब आप उपवास के साथ प्रार्थना कर लेते हैं तो आपकी प्रार्थना सामर्थी हो जाती है। Fasting will not increase the power in prayer. उपवास कभी भी प्रार्थना को सामर्थी नहीं बनाता है। When our thoughts are clean, when our words are clean, when our life is clean, then when we pray, when you rebuke, devil will flee away. That is the simple understanding of 2 Corinthians chapter 10 verses 4 and 5. जब आपके विचार, जब आपका शब्द, आपके जीवन शुद्ध होगा, जब आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, तब जो है शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा। यही विचार दूसरा कुरिन्ती 10 अध्याय उसके 4-5 में लिखा है। And chapter 11, we find here the angel of light and the deception by the angel of light. और दूसरा कुरिन्ती की किताब अध्याय 11 में जाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार जो गिराए हुए दूत हैं, शैतान है, वो स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकते हैं और उस चमकदार स्वर्गदूत का रूप धारण करके लोगों को भरमा सकते हैं। Angel of light means is a fallen angel, is a devil. He dupes, how he dupes, we find it in chapter 11, verse 3. I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he who comes preaches another Jesus, whom we have not preached, if you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you may well put up with it. और दूसरा कुरिन्ती 11 है उसके 3 और 4 में ऐसा लिखा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुम I think his connection is gone. Oh, Brother Anil Khare, are you there? He resigned now. अंकल देयर इज सम Has he joined again? नाउ आई एम ऑडिबल अंकल। Yes, you are audible, brother. Please go ahead. नाउ आई एम ऑडिबल अंकल। Yes, yes, yes. प्लीज रिपीट अंकल Yeah, बिकॉज in the द chapter वॉइस इज 11, नॉट the क्लियर। devil, he corrupts our minds. Actually, he is taking us to Genesis chapter 3. और यहाँ दूसरा कुरिन्ती 11 अध्याय में जो लिखा है कि शैतान जो है वो हमारे मुंह को बहका देता है, जैसा कि उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में लिखा है। He deceives us. और वो हमें बहका देता है, भरमा देता है। He puts wrong thoughts in our mind. वो हमारे विचारों में गलत बातों को डाल देता है So he corrupts our minds. और इसके द्वारा वो हमारे मनों को दूषित कर देता है। Then it is easy to preach another Jesus. और तब वहाँ आसान हो जाता है कि वो किसी और यीशु का प्रचार करने लगे। And it is easy to supply another different spirit.
और तब वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि कोई और ही आत्मा वहाँ पे Ul- कार्य करने लगती है, Ultimately, a different gospel. और उसके कारण दूसरे प्रकार। It happens. Sridhar bhai, are you there? Yes, uncle. Please go ahead then. नॉर्मल। I think brothers, network is little difficulty, and we have come almost to the end. He has joined, uncle. Join Anil Khare bhai. Are you back? बट देर इज नेटवर्क इश्यू, बट देर इज नेटवर्क इश्यू अंकल, प्लीज ब्रदर श्रीधर, यू गो नाउ। Acha, brother Sridhar bhai, you please continue. Almost all we have come to the conclusion. Okay, uncle. Yeah. Okay. Can you repeat, uncle? So the purpose of the devil is always to corrupt our mind. जो शैतान का उद्देश्य हमेशा ये है कि हमारा जो दिमाग को खराब करके रखना। So when our minds are corrupted, it is easy to preach another Jesus. यदि हमारा दिमाग खराब हो गया तो हम दूसरे यीशु को प्रचार करने का संभव है। So then we'll have a different spirit and we'll have a different gospel. उस समय हम दूसरा आत्मा हमारे अंदर रहता है, हम सुसमाचार दूसरे प्रकार के सुसमाचार देते हैं। Do you know why there are divisions in the churches? कलीसियाओं में क्यों आजकल विभाजन है? Same problem. वही समस्या है। A different Jesus. So the Jesus whom I believe is different Jesus whom you believe. यीशु जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, वो यीशु आप जो विश्वास करते हैं वो अलग है। We have customized Jesus Christ. हमने आजकल जो फैब्रिकेटेड यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। So I want Jesus according to my own wins, my own fans, and my own desires, my own passions, and my own satisfaction, and my own joy, and my own. Say, I want Jesus according to my own framework, my own mindset. What a tragedy. That is the reason why in the local church there is no unity. आजकल कलीसियाओं में एकता नहीं है, इसलिए कि हम यीशु को ऐसे प्रचार करते हैं अपने स्वयं के लिए, मेरे लिए, मेरे इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मेरे आशाओं को पूरा करने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। If there is one spirit in between two people, it is easy for them to be united. यदि दो विश्वासियों के अंदर एक आत्मा है तो ये आसान होता है वो प्रभु का काम करने के लिए। That means if the same Holy Spirit, only one Holy Spirit, if the same Holy Spirit dwells in the two believers, it is easy for the unity. एक ही पवित्र आत्मा दो विश्वासियों के अंदर वास करता है, काम करता है, तो सुसमाचार प्रचार करना आसान है। That's what Ephesians chapter 4 verses 1 to 3. Please turn to Ephesians chapter 4 verses 1 to 3. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness and with long suffering, bearing one another in love, endeavoring to keep the, please remember, verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Endeavoring to keep the unity of the Spirit. We don't initiate the unity of the Spirit. Please remember, we don't initiate unity, we only keep the unity. Whatever Holy Spirit initiates the unity, we simply keep by following these parameters. यहाँ पर तीसरा वचन में हम देखते हैं कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यहाँ पर पवित्र आत्मा जो एकता के लिए काम शुरुआत करते हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी को आगे करते हैं, हम नहीं शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। Let me repeat once again. If the Lord does not join us, if the Lord does not unite us, if the Holy Spirit does not unite us, if our theology, if our convictions of the Holy Spirit does not unite us, we will never be united. Separation is the best principle.
यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, यदि पवित्र आत्मा हमको एक मन नहीं देता है, एकता में नहीं अगुवाई करता है, तब हम परमेश्वर के काम में एकता नहीं देख पाते, आगे नहीं बढ़ सकता है। इसका एक ही मार्ग है कि अलग हो जाओ। This is the ministry of the fallen angel of light. He comes as an angel of light. Actually, he is a man, he is a person from the powers of darkness. He comes with craftiness. He comes to corrupt our mind. Ultimately, what he will do? He will deviate us from the simplicity of Christ. That is his business. यही यही आत्मा जो है, स्वर्ग लोक से जो गिरा हुआ शैतान की आत्मा है, जो इसके कारण ये हमारे दिमाग को खराब कर देता है, और यही कलीसिया में आजकल काम कर रहा है। He preaches another Jesus, he receives another spirit and another gospel. वो व्यक्ति जो है दूसरा यीशु को प्रचार करता है, दूसरा आत्मा उनके अंदर रहता है, और सुसमाचार भी दूसरे प्रकार की होती है। And Paul says, chapter 11, verse 13, deceitful workers are there. They have transformed themselves into apostles of Christ. यहाँ पर 11 अध्याय 13 वचन से आगे हम देखेंगे तो धोखा देने वाले जो सेवक लोग हैं, सेवकाई करने वाले लोग हैं, और वो सुसमाचार को बदल देते हैं। So no wonder Satan himself transforms himself into an angel of light. यहाँ पर शैतान जो है अपने आप को स्वर्गदूत के समान, जो ज्योति के जो एंजल के समान अपने आप को बदल देते हैं। So verse 15, his ministers also transform themselves into the ministers of righteousness. Devil's agents are there in the local churches. Please remember. 15 वचन, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे, तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। देखिएगा, आजकल शैतान के जो दूत लोग कलीसिया में हैं, याद रखिएगा, They live wicked life, but still they are leaders in the local church. वो लोग दुष्टता के साथ जीवन बिताते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कलीसिया में लीडर्स हैं। They will have disturbed families. They'll have lot of sin in their own families, but they are leaders in the local church. They spoil the whole unity in the local churches. वही लोग, उनके परिवारों में बहुत भयंकर परिस्थिति है, डिस्टर्ब हुआ परिस्थिति है, लेकिन आज के दिन वो कलीसिया में लीडर्स है। And then Apostle Paul talks about in chapter 11 the sufferings of Apostle Paul. Verses 23 to 28. I have listed here: in labors more abundant, in stripes more measure, in prisons more frequently, in deaths often, from the Jews 5 times. I received 40 strips minus 1, because they cannot go more than 40 minus 1. 3 times I was beaten with rods. Please read the list in Hindi from chapter 11 verses 23 to 28, brother. Once I was stoned, 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have been in deep sleep. दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय 23 से लेकर 28 वचन तक। One minute, let me complete in Telugu. In English, in journeys often, in perils of water, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among the false brethren, in weariness and in toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. Besides the other things, what comes upon me daily, my deep concern for all the churches. 23 वचन से आगे 28 वचन था। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए,
एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यासे में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। He said light affliction in 2 Corinthians chapter 4. दूसरा कोरिन्थी चौथा अध्याय में बताते हैं कि ये सारे क्लेश जो है थोड़ा सा ही है, कुछ ही है, कम We है। have already seen that. इस बात को हमने देख चुके हैं। Many times I don't understand why all these persecutions are they necessary for Apostle Paul? कई बार मैं ये सोचता हूँ, क्यों इतना क्लेश प्रेरित पौलुस के जीवन में है? ये सारे क्लेश को जरूरत है? It is found in 2 Corinthians chapter 1, we have already discussed. There Apostle Paul says, God allowed us to go through this many sufferings so that where we received comfort, we experienced comfort, and we help others to comfort because we went through all those things. यहाँ पर दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय में पौलुस अपना अनुभव से कहता है कि ये सारे जोखिमों से, क्लेशों में से परमेश्वर इसलिए मुझको लेकर आ गया कि परमेश्वर मुझे सांत्वना देता है, परमेश्वर मुझे कंफर्ट करता है, ताकि हम दूसरों को भी सांत्वना देने वाला बन सके। And 12th chapter, he talks about the grace of God. 12 अध्याय परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में बात करता है। There was a thorn in his flesh. पौलुस के शरीर में एक कांटा था। The end of the thorn, the control of the thorn is given to the Satan himself, and Satan buffets him. जो कांटा जो है शैतान के हाथ में दे दिया, जो शैतान जो है पौलुस को मतलब परेशान करता है। That's what he said, a thorn in the flesh which was given to me, a messenger of Satan to buffet him. So the other end of the thorn, under the control of the Satan, this is what given by God himself. ये पौलुस ये कहता है कि ये कांटा जो है शैतान की ओर से मेरे शरीर में रखा गया है कि ताकि मैं अपने आप को घमंडी ना करूं। He prayed 3 times. 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया है। Then he could understand that he should not pray 4th time. तब पौलुस को ये समझ में आया कि मैं चौथी बार इसके विषय में प्रार्थना ना करूं। He could understand that he should not pray about this particular item. यही समझ में आया कि चौथी बार इस विषय के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूं। Many of us, we pray for years together. We never know whether we should pray for that item or not. कई बार हम लोग कई सालों तक एक विषय के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, उसके बाद भी हमको नहीं मालूम है उस विषय के लिए प्रार्थना लगातार करना है कि नहीं। He prayed first time. पौलुस एक बार पहली बार प्रार्थना He किया, prayed second time. दूसरी बार प्रार्थना किया, He prayed third time. तीसरी बार प्रार्थना किया। He could understand that no. That's not the prayer item he has to pray. He has to pray. उसके बाद पौलुस को ये समझ में आया कि नहीं, मेरे को ये प्रार्थना नहीं करना है। Same thing happened with Moses also. मूसा के साथ भी यही चीज हुआ है। God told him clearly, no, you cannot go. परमेश्वर ने मूसा से स्पष्ट रीति से कहा, आप कनान में पहुंच नहीं सकते। Then Moses knew that God is gracious and he prayed, Lord, at least he said, no, once I said, that's it. No change of mind. मूसा ने फिर से परमेश्वर से विनती की, प्रभु जी मुझको एक और बार अवसर दीजिए करके, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, एक बार मैंने कह दिया, आप नहीं पहुंच पाओगे, कह दिया। But I don't know how God enabled Moses to see that far. He did not even cross Jordan, but from there the plains of Midian, from there he sees the Palestine. I don't understand how God made him to see all that. उसके बावजूद भी परमेश्वर ने मूसा को एक दूरदृष्टि दिया कि वो पहाड़ से पूरा कनान देश को और मिद्यानी देश को, पूरा जो मिद्यानी मैदान को पूरा जो दूरदृष्टि से देखता है, ये बात मुझको भी समझ में नहीं आता है। No, he saw the promised land Palestine from the land of Midian. He gone up to the mountain there.
वो मिद्यानी जो देश का जो पर्वत पर चढ़कर वहां से कनान देश को पूरा उन्होंने दूरदृष्टि से देखे। In the same way, here he prayed 3 times. He could understand that he should not pray about it. There he understood, my grace is sufficient to you when in your weakness. यहाँ पर पौलुस 3 बार प्रार्थना करने के बाद यही समझ में आ गया कि मैं आगे प्रार्थना इस विषय के लिए नहीं करूं, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है करके उन्होंने सोचा है। What is the purpose of Satan of operating the thorn? जो शैतान जो है, जो कांटा दिया गया उस कांटा को कैसे इस्तेमाल करता है, उसका उद्देश्य क्या है? Weakness. कमजोरी पर। But many times what we pray, Lord, strengthen us in the ministry, strengthen us this, strengthen us that. That's what we pray. But in our strength, God's grace is not sufficient. God's grace is sufficient only in our weakness. कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी मुझे सेवकाई में बल दे, शक्ति दे करके, लेकिन हमारा बल अपने आप में उसमें काफी नहीं है। लेकिन हमको प्रार्थना यही करना है, प्रभु जी मेरे जो बलहीन स्थिति में मुझे सहायता करे करके प्रार्थना करना है। And then verse 10, he reversed the plate. Then he says that I am strong when I'm weak. तब पौलुस का इस कारण से मैं मसीह के लिए निर्बल तो मैं जब मैं बलहीन हूँ, निर्बल हूँ, तभी मैं बलवंत हूँ करके बोलता है। So in his weakness, the strength of God is made perfect. जो पौलुस की जो निर्बलता में परमेश्वर ने उनको बलवंत किया है और सिद्ध किया है। One side, Satan is operating the thorn in the flesh of Apostle Paul. The other side, God is supplying his strength, that is his grace, which is Apostle Paul is able to overcome his weakness and he is able to serve the Lord fairly well. एक तरफ से शैतान कांटे के द्वारा पौलुस को निर्बल करते जा रहा है, दूसरी तरफ परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा उस बलहीन निर्बल स्थिति में बल देकर, सामर्थ देकर उनको सेवा पूरा करने में सहायता करते जा रहा है। Much can be said about this topic. बहुत कुछ इस विषय में बात कर सकता हूँ। My time is up. I have to conclude. आज का समय समाप्त हो गया है अभी। And in the concluding remarks, 13th chapter verse 8, we can do nothing against the truth but for the truth. 13 अध्याय 8 वचन, क्योंकि हम सच के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सच के लिए ही कर सकते हैं। What a statement it is. ऐसा स्टेटमेंट है। What a statement it is. कैसे स्टेटमेंट We can do nothing against the truth but for the truth. हम सच के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सच के लिए ही कर सकते हैं। With this we are concluding 2 Corinthians, the book of 2 Corinthians. तो इसके द्वारा हम दूसरा कुरिन्थी पत्री को पूरा अध्ययन किया हुआ। God is so good and by his grace we are able to sustain this study. परमेश्वर अच्छा है, भला है, उसके अनुग्रह के द्वारा हम इस दूसरा कुरिन्थी को अध्ययन को पूरा किया। May the Lord bless this word. परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। Over to brother Anil Khare.